Worksheet number worksheet number 5 and worksheet number 4 was given homework. Yes, sir. So we have to use we have to use positive, comparative, and superlative degree in chapter Do It Yourself. Options are given there. Options are given there, and you have to use the suitable positive, comparative, and superlative degree. Which is the fruit in India? You have to use popular as the suitable degree. Okay. So, which is the most popular fruit in India? First one, most popular. Popular is the longer word, and I had taught in the rules to use more or most in longer word or with longer word to make it a comparative and superlative degree. So, most popular fruit, which is the most popular fruit in India? December is then February. You can you can see here it is used than, and wherever than is used, there is comparison, and we use comparative degree. हाँ बोलो. सर ये जो डू इट योरसेल्फ है हम्म. Do it yourself, I mean. कोई बना सकते हैं Yes, you can yourself, no problem is there. But I am making you understand how to do it. Okay. और सर डू इट योरसेल्फ को बुक में बनाना है कि कॉपी में You can do it either in book or in copy or in both. सर दोनों ही में बनाना है Yes. ओके सर One who do not have book, I will provide them the PDF of the book. Okay. And they see the PDF from there and do the worksheet or the work. So December, you can see here, then is used with February. Wherever then is used, that means there is comparison. And wherever comparison is there, we use comparative degree. So December is colder than February. Second, colder. Third, health is always than wealth. Once again, than is used here. So wherever than is used, you have to use comparative degree. So what will be the Better. comparative Sir, degree of better. good? Better. सर बेटर Health is always better than wealth. Fourth, sharp. Your knife is not so as mine. I had taught in the previous class about the as, and so as. So wherever
so as, and as use, we use positive degree for this blend. Okay, no comparative or superlative degree will be used. We will use positive degree of the option given there. Okay, so Third क्या है? as हाँ क्या वाला है? नहीं दिखाई दे रहा है कौन सा दिखाई नहीं दे सर, रहा है? नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है सर, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है दिखाई तो दे रहा है। सर, ऊपर। यस सर, अब दिखाई दे रहा है ठीक है, सर, इसके नीचे। यस सर, थोड़ा ऊपर कीजिए ना, मेरा भी जस्ट दिखाई नहीं है सर, इसको लिखना है कॉपी में या बुक में। you have सर, this नीचे time वाला धुंधला दिख रहा है सब दिखेगा बेटा। 1 minute प्लीज वेट प्लीज, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। देखो, आपको फर्स्ट यू डू इट इन योर बुक्स, later you have to do it in your copy. One who does not have book, he or she will do it in copy. ओके सर बस बुक हो तो बुक में कर सकता है we have to do it in book as well as copy also Yes, yes. सर, जिसके पास बुक है सर, वो कर सकता है बुक में। Yes, sir. How many times I will repeat the same thing? यस सर So, सर, whenever, so as और as, अपने माइक बंद रखो सब, साउंड इको हो रहा है। No one will keep their mic in on mode. Everyone please mute it. सर, थर्ड नंबर में क्या है? सर, फर्स्ट थोड़ा नंबर ऊपर में कीजिए बेटर है, बेटर। सर, थोड़ा ऊपर कीजिए ठीक है, यस सर have you all written it? Most popular, in second folder, in third better. Now in fourth one you have to use so as. So I have made it understand here, whenever so as and as comes in the sentence, you have to use positive degree in the given blank. So what is the positive degree given here? It is given sharp. Your knife is not so sharp as mine. So positive degree will be used here. जहां भी so as और as आए तो वहां पर डिग्री जो है ना वो पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड फॉर्म इज कंपैरेटिव एंड थर्ड फॉर्म इज सुपरलेटिव सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। डॉक्टर यूएस प्रसाद के नाम से किसका आईडी बना हुआ है? बोलो। सर, डॉक्टर यूएस प्रसाद के नाम से किसकी आईडी बनी हुई है? हाँ? हो गया क्या हो हो गया? गया हाँ? मीटिंग से सर लेफ्ट हो गया सर, मीटिंग से सर लेफ्ट हो गया लेफ्ट नहीं हो गया, उसको मैं बाहर कर दिया हूँ। ठीक है, हाँ। अब देखो, सो एज एंड एज पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री।
comparative positive degree, comparative degree, and superlative degree. So where you are so and as used, you have to use the positive degree of the given adjective. Next, your knife is not so sharp as mine. Can I rub the board? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Okay, okay, I will not rub. Fifth one, the Leaning Tower of Pisa is not as the Qutub Minar. You can see here as is used as is used here. What is the option given here? Tall. So which degree will be used? Positive, comparative, or superlative? Which degree will be Positive. used? Yes, positive degree. What is positive degree given here? Sir, Tall. हाँ सर फर्स्ट का सर सर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? which is the most popular fruit in India? Second में December is colder than February. And third में health is always better than wealth. Fourth, एक बार फर्स्ट रिपीट करिए ना. which is the most popular fruit in India? तो सर इसका आंसर मोस्ट पॉपुलर लिखेंगे ना? हाँ, most popular. In second, December is colder than February. I have written here. In third, health is always better than wealth. And fourth, your knife is not so sharp as mine. I have written here so as. Wherever so as or as comes in the sentence, we use positive degree for the given blank. Okay? No comparative and superlative will be used for so as or as. Can you rub the board? सर फिफ्थ का आंसर टॉल होगा ना? हाँ, tall. The Leaning Tower of Pisa is not as tall as the Qutub Minar. Sir, six. Six में which of the two paintings is blank? So you can see here two paintings are given. So when two things are given, that means there is comparison. जब दो चीज दिया हुआ है ना, तो समझो वहां पर क्या है? कंपैरिजन है. और when it is comparison, we use comparative degree. So what will be the comparative degree of beautiful? Who can tell? Comparative degree of beautiful? More beautiful. Huh? More beautiful. More beautiful. काजल कनक, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा. जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा. नो, More beautiful. जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा. नो अदर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू गिव द आंसर. ओके? The student who is asked the question, he or she can give the answer only. Kajal Kanak, can you hear me? Kajal Kanak, Harsh Bansal, Harsh Bansal.
रौनक राज, रौनक राज, रौनक राज। सर हर्ष बन सकते ज्वाइन है मीटिंग में। हाँ तो वो बोल नहीं रहा है, डर रहा है कि सर कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए साइलेंट मोड में है। आर्यन राज, आर्यन राज, ये भी नहीं बोलेगा। आदिति सिंह, आदिति सिंह, आप बताओ ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री। क्या सर? ब्यूटी, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। सर कंप्लीट। आदिति सिंह, आदिति सिंह, आदिति सिंह, कैन यू हियर मी? यस सर। What is comparative degree of beautiful? ब्यूटीफुल Hmm. ब्यूटीफुल Anantraj, Anantraj, can you hear me? सर मोर हाँ. ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। Who is speaking? मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। I am asking comparative degree only. कंपेटिटिव मोर ब्यूटीफुल। Very good. More beautiful. So you have to write in sixth number which of the two paintings is more beautiful. More beautiful. Now the next one, Einstein is considered to be the scientist of our times. It is number 7. So in seventh number, Achal Kumari, can you hear me? Achal, सर अभिषेक कुमार नाम है। अच्छा अभिषेक कुमार नाम है। आंचल कौन है? 3B में है आंचल, बहन है। इसे मेरी बहन का नाम है। वेरी गुड। सो अभिषेक, you tell सर the what degree will be used in seventh number question. सुपरलेटिव डिग्री। Very good. Very good. Keep your mic in off mode. अनुराग, अनुराग, यस सर। आप बताओ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस। What is superlative degree of intelligence? All the what take more for competitive and most for superlative most intelligent। ये whose ID is here? आशा देवी। आशा देवी किनका आईडी है? अनिकेत कुमार क्लास 5 है। अनिकेत कुमार।
आप इस आशा देवी को रीनेम करके अनिकेत कुमार से कर लो बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अनिकेत आप बताइए, व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इंटेलिजेंट? मोस्ट इंटेलिजेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। So in seventh number, Einstein is considered to be the most intelligent scientist of our times. Ashisha Raman, Ashisha Raman, Yes, sir. आप बताओ बेटा, why it is used most before intelligent? Why it is used most before intelligent? क्लियर नहीं आ रहा सर आपका आवाज। Why is it added most before intelligent? Why is it added most before intelligent? देवत्स, देवत्स बताओ यस आप। सर। हाँ बताइए, why is it is used most before intelligent? सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है अच्छे से। Why is it added most before intelligent? इंटेलिजेंट के पहले मोस्ट क्यों लगाया हुआ है? सर क्योंकि सर आपने बोला था सुपरलेटिव डिग्री में इंटेलिजेंट क्या बन जाएगा। हाँ ठीक है। टॉल, टॉल का सुपरलेटिव क्या होगा? सर सुपरलेटिव मोस्ट टॉल। हाँ, मोस्ट टॉल। नो सर नो मोस्ट नो टॉल। नो 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 नो। सर टॉल। दिव्यांशु, दिव्यांशु कात्यायन, सर टॉलेस्ट। दिव्यांशु कात्यायन, सर टॉलेस्ट। टॉलेस्ट। ओके ओके ओके, टॉलेस्ट। व्हाई इट इज नॉट मोस्ट टॉलेस्ट? मोस्ट टॉल क्यों नहीं होगा ये? लॉन्गर वर्ड नहीं है। Yes, वेरी sir, गुड, sir. वेरी Because गुड, in वेरी book गुड। it is written all the longer word take. हाँ, The longer word. we use more or most with longer words. Later on you will study about the syllables, ठीक है ना? यूज लॉन्गर। So Sir, longer word means longer word. sir कितने लेटर का sir longer words मान सकते हैं? that is not fixed. That is not fixed. आप लोग अगले क्लास में या आगे के क्लास में 6 में, 7 में या 8 में सिलेबल पढ़ाया जाएगा, ठीक है? सिलेबल, ओके? तो Okay, sir. मोस्ट और मोर और मोस्ट is used with those words which has two or more syllables. Two or more syllables. तो दो या उसे अधिक सिलेबल वाले वर्ड जो होते हैं ना, उसके साथ मोर और मोस्ट लगाया जाता है, ओके? हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस सिलेबल? सपोज दिस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। So BEAU. This is one syllable. TI.
This is second, and a fuel. This is third. So beautiful consists of 3 syllables. Okay? तो इसलिए है ना इसके साथ हम more और most लगाते हैं। समझ गए अब? Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. तो समझ में आया. हाँ, अब समझ में आया। अब देखो टॉल, तो टॉल में कितना सिलेबल है? देख लो इधर, टॉल। सो हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन टॉल? तो जितने अल्फाबेट आएंगे इसमें, अल्फाबेट नहीं, वावेल, ठीक है। हाउ मेनी वावेल्स आर देयर इन दिस वर्ड? 1. So this consists of one. So this consists of one syllable. Voice is echoing. Sir, your voice is echoing. तो सब लोग माइक ऑन कर लिया है तो इको नहीं होगा। मैं तो बार बार कहता हूँ माइक ऑफ रखो बेटा, माइक ऑफ रखो। आप लोग माइक सब ऑन कर लोगे तो इको होगा। तो दिस इज syllable. Understand this syllable. How do we understand the syllable of the given word? तो यहाँ पर देखो एक ही वावेल आया है, TALL। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। एल क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसके बीच में एक वावेल आया, ये एक, ठीक है। तो इसलिए हम ना टॉल में मोर और मोस्ट ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। ये ऐड नहीं होता है, समझ गए। इसमें हम ER और EST लगाते हैं, मीन्स टॉलर एंड टॉलेस्ट। सो दिस इज सिलेबल। अब आगे भी बताता हूं, देख लो। अब मैं बताया था ये इंटेलिजेंट है ना, You have to write this. इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। We have to write. No, you do not have to write it. You have to understand it. Okay? आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल समझना है कि सिलेबल कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड हाउ डू वी नो दैट वेदर मोर और मोस्ट विल बी यूज और ER और EST विल बी यूज। समझ गए ना? तो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे हम ER और EST ऐड करेंगे और कब हम मोर और मोस्ट यूज करेंगे। Longer words mostly consist of 2 or more syllables. That is why we add more and most to make them. Sir, हाँ, sir, बोलिए। longer words means sir कितने letter? That is not fixed. लेटर उसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। वो कट कर दो, वो कितना भी लेटर का हो सकता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली वेदर the word consists of you have to understand only that whether the word consists of 2 or more syllables, 2 या उससे अधिक सिलेबल है तो हम क्या करेंगे? मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। वर्ड में 2 और मोर सिलेबल। अब देखो मैंने लिखा इंटेलिजेंट। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन दिस वर्ड? सब लोग माइक ऑफ रखिए। So we understand that
हाउ मेनी वॉवेल्स कम्स बिटवीन दी कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर देखो टी और एल इतने के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आया है ना। तो दिस इज वन सिलेबल एंड जेंट। फिर देखो एल आई जी सेकंड, GENT ये हो गया थर्ड। सो 3 syllables आर देयर इन दिस वर्ड इंटेलिजेंट, है ना। तो 3 syllables है। That's why इसमें हाँ, इसलिए हम इसमें मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। वाला आई नहीं लगेगा। हाँ? बोलो। आई नहीं लगेगा इंटेलिजेंट। नहीं नहीं, आई इंडिपेंडेंट है ना, इस इधर कॉन्सोनेंट रहेगा सब। दो कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल यूज होता है ना, वो सिलेबल काउंट होता है। ओके सर। हाँ, अगर वॉवेल के पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है तो सिलेबल काउंट नहीं होगा। यहाँ पर देखो टी और एल के बीच में वॉवेल है, जी और ई के बीच में, इतना के बीच में एक वॉवेल, तो ये एक सिलेबल हुआ और ये एक सिलेबल हुआ, है ना। LIG यहाँ भी क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, वॉवेल है। तो इसलिए 1 2 3 syllables are there in this word intelligent. That is why more and most is used with such type of longer words. ठीक है ना। अब टॉल में मैं बताया था कि सेकंड में देखो जैसे गुड है, यहाँ पर देखो कॉन्सोनेंट बीच में वॉवेल एक यूज हुआ, तो दिस वर्ड हैज वन सिलेबल। ठीक है, तो वन सिलेबल है तो क्या होता है, बेटर और बेस्ट हो जाता है ना। ठीक है, कैन आई रब दी बोर्ड। सर। सब लोग समझ गए। यस सर। एनी प्रॉब्लम विथ एनीबडी। नो सर। हाँ, अब देखिए एक है हैंडसम। सो हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर, HAND। यहां से देखो यहां तक में एक वॉवेल आया, एंड SOM यहाँ दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आया। तो अब इसके बाद वॉवेल, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। अब देखो 1 and 2 में हैंडसम में कितना सिलेबल, 2 सिलेबल। तो मैं बताया था कि व्हेन द वर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिलेबल्स, 2 या उससे अधिक सिलेबल जब आएगा वर्ड में, तब उसमें हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे, बताया था मैं। तो इसलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है कि सिलेबल में हम क्या लगाते हैं, हैंडसम में क्या लगाते हैं, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम, है ना। समझ गए। अब देखो जैसे मैं बताया था कोल्ड, तो कोल्ड में देखो यहाँ पर कितना सिलेबल है, ओनली वन सिलेबल है यहाँ पर, है ना। तो वन सिलेबल है तो इसमें क्या लगेगा, EST लगेगा, इसलिए ये कोल्डर और कोल्डेस्ट हो जाता है। कोल्डेस्ट। अब समझ में आ गया। भी करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाएंगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप एक्टिविटी है तो वो नहीं करवाएंगे। अब देखो एक और क्या था, शार्प, SHARP, शार्प। तो हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन दिस वर्ड, इसमें कितना सिलेबल है बताओ, इसमें कितना सिलेबल है शार्प में। हाँ,
देखिए ये पूरे पूरे कॉन्सोनेंट में एक ही वॉवेल आया है, तो दिस इज ऑफ वन सिलेबल, है ना। तो इसमें शार्पर और शार्पेस्ट हो जाएगा ना। हाँ, शार्पर एंड शार्पेस्ट। हाँ, अब लॉन्गर वर्ड समझ में आ गया कि किस लॉन्गर वर्ड में हम मोर और मोस्ट ऐड करेंगे। यस सर। नो प्रॉब्लम इज देयर, एवरीबडी इज क्लियर। यस सर। वेरी गुड। तो ये है आपका सर किसी जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो हाँ। भी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव हो जाता है। व्हाट क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क, आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर से सवाल करो, क्या पूछ रहे हो, मैं समझा नहीं। सर जैसे कोई भी वर्ड है तो सर वही कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है ना कोई कोई वर्ड में। हाँ, क्यों नहीं हुआ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सारे एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। चाहे ओके सर। उसमें मोर और मोस्ट लगा करके हो या ER और EST लगा करके हो, ठीक है। कैंडल। कैंडल। सर क्या ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आशीषा रमन बोलिए। अगर दो वर्ड होगा हाँ, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? दो वर्ड होगा मतलब एग्जाम्पल बोलो। सर उसमें वॉवेल बीच में आना चाहिए। हैं? चाहिए तभी मैं सर बोल। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलिए, क्या आप पूछ रहे हैं। आशीषा रमन बोलो। हाँ बोलो, फिर से बोलो बेटा। वैसे उसमें उसमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। हैंडसम आपने लिखा है ना सर। हाँ हाँ उसमें बोर्ड सिलेबल है। हाँ हाँ तो उसमें बोर्ड लगेगा। हाँ, हैंडसम है ना, तो हैंडसम में दो वर्ड है, ठीक है ना। आप कहना चाह रहे हो यही ना कि हैंडसम में दो वर्ड है, हैंड और सम, यस सर। है ना। तो हम इस टाइप के वर्ड को कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड बोलते हैं इसको। When two words combine together to make one single word, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड, ठीक है। बट हमको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कंपाउंड वर्ड से मतलब नहीं है, उसमें दो वर्ड है कि तीन वर्ड है, उससे मतलब नहीं है हमें। We have to see only the syllables of the word, that how many syllables are there in the given word. If it is two or more syllables, then we add more or most. If it is one syllable, then we add ER and EST. समझ में आ गया? यस सर। हाँ हाँ। अब देखो देखो, ब्यूटीफुल 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 में भी क्या है, दो वर्ड है। ब्यूटीफुल में भी दो वर्ड है ना। एक क्या है, ब्यूटी, और दूसरा क्या है, फुल, है ना। तो ये इस टाइप के वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड। बट वी डू नॉट सी दी कंपाउंड वर्ड, वी हैव टू सी ओनली दी सिलेबल्स। अब यहाँ पर देखो EAU तीनों क्या है, वॉवेल है, तो ये तीनों मिलाकर के एक ही सिलेबल काउंट होगा। समझ में आई बात? यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल है,
तो ये दूसरा सिलेबल काउंट होगा, और ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल है तो ये तीसरा काउंट होगा। मीन्स ब्यूटीफुल कंटेन्स 3 सिलेबल्स, तो 3 सिलेबल्स हो गया तो मोर एंड मोस्ट लगाएंगे। बोलिए, सर सब लोग समझ गए ना? नंबर 1 जो सर डू इट। यस सर। सर टेक का क्या? हाँ, टेक सर टेक का क्या होगा? टेक का स्पेलिंग बोलो बेटा, स्पेलिंग बोलो। स्पीक स्पेलिंग प्लीज। के TAKE। हाँ, ये TAKE। बताओ। यस सर। तो ये देखो एडजेक्टिव नहीं ना है, हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और यस सर सुपरलेटिव बनाते हैं। यस सर। हाँ, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये तो वर्ब है। वर्ब का कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होता है, ठीक है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तभी होगा जब वो एडजेक्टिव होगा। जैसे बैड, अब देखो, तो ये क्या करते हैं, आज का क्लास खत्म हुआ, आई विल सेंड होमवर्क इन द ग्रुप, ओके। बोलो। कुछ डू इट योरसेल्फ को तो क्वेश्चन नंबर 1 सर बुक ही में करके भेजना है। हाँ, बुक में भी कीजिए और कॉपी में भी कीजिए, ओके। You have to do it in book कॉपी में as well करते as हैं in copy. सर। सर सुपीरियर का क्या होगा? किसका? सुपीरियर। सुपीरियर। सुपीरियर में देखो सर कितना कितना सिलेबल है सुपीरियर में। SUPERIOR। SUP, दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल आया तो एक सिलेबल। SUPER, P और R के बीच में एक सिलेबल आया, एक वावेल आया E, तो 2 सिलेबल हुआ। RIOR, I और O दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक दो वावेल है तो एक सिलेबल हुआ, तो 3 syllables आर देयर इन दैट, सो वी विल ऐड मोर एंड मोस्ट, मोस्ट सुपीरियर, मोर सुपीरियर। समझ गए? हाँ, ओके, हैव नाइस सर टाइम। कैंडल का क्या होगा? कैंडल इज नाउन, सर तो भी कैंडल का कैंडल नाउन है बेटा, नाउन का वो डिग्री नहीं होता है, जब भी होगा एडजेक्टिव का होगा। ओके सर। कैंडल इज नाउन ना। सिर्फ एडजेक्टिव वर्ड्स का डिग्री हाँ निकल सकता है। हाँ, केवल एडजेक्टिव का, ओनली एडजेक्टिव वर्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इन डिग्रीज, वेदर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। हैव नाइस टाइम, ओके। यस सर।